Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and first of all, मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आप सबको जिन्होंने भी इस रमज़ान रोज़े रखे और ईद के लिए भी मैं आपको जो है ईद मुबारक कहता हूँ। हालांकि ये वीडियो लेक्चर थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद अपलोड हो जाएगा, बट चलिए उस दिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। Today this will be our video lecture number 12 for the class 12, and in this video lecture we are going to discuss the reduction reactions of aldehydes and ketones. My dear students, this topic, that means the reduction of aldehydes and ketones, is a very important topic, and for the competitive examination perspective, questions are usually asked in this topic. So today's our topic is about reduction reaction, means the reduction of aldehydes and ketones, and in that very context we are going to discuss the reaction number first in the reduction category, and that reaction is the Killian-Sinus reduction. My dear students, it is a named reaction, and I want you to remember this point, that named reactions are always important reactions, and you should do this thing, that make a notebook, and in that very notebook you should write all the named reactions so that you can later on practice them for the competitive examination perspective. So the first reaction is Killian-Sinus reduction. Killian-Sinus reduction is done in case of aldehydes and ketones where there is a carbonyl group. Second, वही मैंने लिखा that Killian-Sinus reduction जो है एक named reaction है जो aldehydes and ketones के लिए इस्तेमाल की जाती है. My dear students, इस reduction method से aldehydes and ketones से hydrocarbons बनाए जाते हैं, यानी कि alkenes बनाए जाते हैं. We are going to discuss mechanism inshallah later on, but we are going to discuss each and every step carefully and properly. Stay with me, and we will inshallah do it. So first of all, it was the name of the scientist is Killian, and we are discussing the reduction of aldehydes and ketones, and that's why we call this reaction as Killian-Sinus reduction. In Killian-Sinus reduction, you have to remember first two important points, that Killian-Sinus reduction is done for aldehydes and ketones. In this process, aldehydes and ketones, they get converted into the corresponding hydrocarbons. First point. Number second, the reagent which is involved, which is utilized in the Killian-Sinus reduction reaction is zinc amalgam, इसको कहते हैं. My dear students, जब किसी भी मेटल को मरकरी के साथ, ये एलॉय है बेसिकली, जब आप बहुत सारे मेटल्स को यूजुअली आपस में मिक्स करते हो तो हम उनको एलॉयज कहते हैं, और एलॉय में अगर एक मेटल मरकरी है तो उन एलॉयज को माय डियर स्टूडेंट्स अमलगम्स कहते हैं. तो जिंक यहां मरकरी के साथ एक एलॉय फॉर्म में है जिसको आप कहते हो जिंक अमलगम. और रिएजेंट जो दूसरा इसके साथ है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस यू आर डिस्कसिंग द रिडक्शन रिएक्शन, देयरफॉर दिस रिएजेंट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So the 2 points which I have told you is that in Killian-Sinus reduction of aldehydes and ketones takes place into the corresponding hydrocarbons, that is alkanes, and the reagent which is used for the reduction of aldehydes and ketones in this reaction is zinc amalgam and hydrochloric acid. And इस रिएक्शन में होता क्या है, मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा, that carbonyl compound जो होते हैं, that is जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ये aldehydes में भी होगा, डियर स्टूडेंट्स, ये कीटोन्स में भी होगा. यानी कि आपका ये जो पैरेंट कंपाउंड है, either it can be aldehyde or it can be ketone, and when you perform the reaction of this carbonyl compound in this reagent which I have already mentioned, this is also called as a Killian-Sinus reagent. It's a reducing agent, so the reduction reaction will take place, and this C double bond, or simply you have to reduce it, and it will be changed to CH2 group. I'm going to discuss the mechanism for this reaction, and everything will be clear, but you have to again remember this point, that carbonyl group gets reduced in presence of this reagent, and in place of double bonded O oxygen, you have to put 2 hydrogens, because addition of hydrogen actually takes place in this reaction. So आपका aldehyde और ketones में जो carbonyl group होता है, my dear students, they get converted into the corresponding hydrocarbon, यानी कि C double bond O group gets changed to CH2 group. So basically it is the reduction reaction, my dear students. It is a reduction reaction. ये reduction reaction है, ये आपको याद रखना है. तो रिडक्शन रिएक्शन, ऐसी रिडक्शन रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड सच एज aldehydes and ketones को इस रिएजेंट
में इनके जिंक एमलगम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिड्यूस किया जाता है टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन, वी कॉल दैट रिडक्शन एज Clemenson's रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम था जिसने रिएक्शन जो स्टडी की है उसका नाम था क्लेमेंसन, तो इसीलिए इसको कहते हैं Clemenson's reduction, my dear students. Now, in order to understand the reaction properly, we are going to discuss the mechanism of this reaction. So let us discuss the mechanism of this reaction. First of all, you have to understand, मैं यहाँ पे लिखता हूँ mechanism and हर एक स्टेप में आपको नीचे समझाता हूँ. देखिए my dear students, मैं यहाँ पे लिखता हूँ mechanism. Mechanism. Check it out. मैकेनिज्म में क्या सीखना आपको, पहले क्या होता है, सिंस ये रिएक्शन जिंक अमलगम में होती है और आपको पता है जिंक जो है ये मेटल है और जिंक मेटल होने के तौर पर क्या करता है, सपोज ये ऑक्सीडाइज होता है, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली यहाँ पे जिंक अमलगम एज सच जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. अब मैं जिंक ही दिखाऊंगा यहाँ पे, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट मर्करी इज विद इट. सो जिंक क्या करता है काम, माय डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ये Zn+2 कैटायन बनाएगा और फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हो गए. तो आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे हो रहा है, तो यू नो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. तो यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन होगी. देखिए मैंने अभी आपको कहा दैट ये रिएजेंट एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि दूसरे की रिडक्शन करेगा और डेफिनेटली खुद की इसकी तो ऑक्सीडेशन होनी है. तो देखो जब यहां पे ऑक्सीडेशन होगी, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है. आपको पता है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप में आपको पता होता है दैट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब यही चीज मैं नीचे दिखाऊंगा. देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा काम, मैं यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाऊंगा. देखिए एंड यू नो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस the oxygen atom will develop a slight negative charge and the corresponding carbon atom will develop a slightly positive charge as a result of electronegativity difference between the oxygen atom and carbon atom. Now what happens, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स पहले स्टेप में जिंक ने लूज किए हैं, मैं आपको स्टेप वाइज दिखा रहा हूं. बेसिकली ये प्रोसेस में भी एक साथ ही होता होगा लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं. अब जिंक के वही दो इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक से आए, वो माय डियर स्टूडेंट्स इस वाले कार्बन पे जाते हैं. क्यों जाते हैं, बिकॉज इस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहां पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गई है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये इस कार्बन के पास जा रहे हैं. मान लो यहां पे अटैक कर रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स. चेक इट आउट, these 2 electrons they attack at this carbon. What happens in that very case, carbon already forms 4 bonds, 1 2 3 4, so means 8 electrons, octet complete. जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कार्बन अब 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट कार्बन में फ्री वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है जिसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले सके. इसलिए क्या होता है, इसलिए यहां पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं. एक चीज इंपॉर्टेंट समझिए आप, यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे मैं एरो देता हूं, ये जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना था, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का था. जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके सारा बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला गया, ऑक्सीजन ने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन वो तो ले ही लिया, इसने एक कार्बन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया. इसी की वजह से देखो मैं यहां पे बनाता हूं, यहां पे सी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नेगेटिव चार्ज इसलिए बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो ले लिया इसलिए, और यहां से कार्बन की एक फ्री वैलेंसी. अभी समझना, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जब कार्बन ने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया ऑक्सीजन की तरफ, उसके हिसाब से उसमें पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव खत्म करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. देखिए एक इलेक्ट्रॉन से तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया. तो यहां पे जो इंटरमीडिएट स्पीशी बनी आपकी, उसमें ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, उसमें कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है. बात को समझो फिर से, यहां पे जब बॉन्ड ब्रेक हुआ बाय बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आ गया बिकॉज उस बॉन्ड में से ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन था ही, लेकिन उसने एक्स्ट्रा कार्बन का लिया जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और उस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्सेप्ट किए हैं. उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से पॉजिटिव का पॉजिटिव वाला पॉजिटिव जो चार्ज होता है उस पर वो तो एक इलेक्ट्रॉन से ही कंपनसेट हो जाता है, लेकिन वो जो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है उसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो आपकी इंटरमीडिएट स्पीशीज फिलहाल ये बन रही है माय डियर स्टूडेंट्स. तो देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अब
यहां पे जो पिक्चर में आ रहा है, यहां पे आप पिक्चर में आएगा HCl। देखो अब क्या होता है, इसलिए मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है इरेज करूंगा। ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप यूजुअली देखोगे बुक्स में ये चीजें मैकेनिज्म नहीं दिया होता है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑर्गेनिक का सबसे बेहतरीन मौका अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो यहाँ पे मिल रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यही लेता हूं यहाँ पे। देखिए अब कार्बन जिसकी 2 फ्री वैलेंसीज यहां से दिखाई आपने, इधर अल्डेहाइड होगा या कीटोन होगा, जो भी है। यहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, वो तो दिख रहा है, और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हो रहा है यहां पे 2H प्लस जा रहे हैं, 2H प्लस। वो कहां से आएंगे, 2H प्लस 2HCl से आ रहे हैं। 2HCl बिकॉज HCl सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब ये डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, ये देगा 2H प्लस एंड Cl माइनस। देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे, 2HCl जो है ये डिसोसिएट होकर ऑफकोर्स वाटर में हो जाएगा, वो चीजें होगी मीडियम में, तो वाटर होगा ही ऑब्वियसली, तो वो 2H प्लस देगा एंड 2HCl माइनस देगा। देखो ये जो 2H प्लस यहां से निकले, ये क्या करेंगे काम, ये इन चार्ज को बैलेंस करेंगे, बिकॉज ये यहां पे रिएक्टिव स्पीशीज है एंड यू नो दैट चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। My dear students, you already know this. Charge makes the system unstable. तो what will happen? ये 2H प्लस जो है ये इसके पास भी चले जाएंगे और ये इसके पास भी चले जाएंगे। तो what will happen? C क्या बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे C, इसकी 2 फ्री वैलेंसी। अब इस कार्बन के पास H जाएगा, वो मैं यहां से दिखाऊंगा, या चलो मैं ऊपर से दिखाता हूं, एक सेकेंड। देखिए इस कार्बन की ऑलरेडी 2 वैलेंसीज थी, तो चलो वो 2 वैलेंसीज में यहां से दिखाता हूं ऐसे। ऊपर से इसके पास एक H प्लस जाएगा, तो यहां से मान लो H ने बॉन्ड बनाया इसके साथ, चेक इट आउट, देखिए यहां पे। और यहां से सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O, और O के पास भी क्या गया, O के पास भी H गया, चेक कर लो यहां पे, देखिए तो बन गया ये आपका। इसका मतलब है यहां पे बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज आपको बनती है ना, ये अल्कोहल है, खुद ही चेक करो ना, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल बन गया। लेकिन अभी फर्दर प्रोसेस होगा, तो मैं ये इरेज करता हूं। देखो अभी क्या होगा, मीडियम आपने क्या लिया है, मीडियम आपने एसिडिक लिया है, बिकॉज यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, चेक कीजिए, उसकी वजह से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं नेक्स्ट स्टेप। दिस वाज स्टेप नंबर फर्स्ट, दिस वाज स्टेप नंबर सेकंड, इसके मान लो ये स्टेप नंबर थर्ड है, अब मान लो स्टेप नंबर 4। मैं आपको अलग अलग छोटे छोटे स्टेप्स में दिखा रहा हूं। अभी जो अल्कोहल बना, सिंस द मीडियम इज एसिडिक, और यहां पे आपको दिखेगी ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कार्बन, चलो मैं ऐसे देता हूं, ये 2 फ्री वैलेंसीज, ये 2 है, और जो H इसके साथ जुड़ गया वो मैं यहां पे दिखाऊंगा, और ये मान लो माय डियर स्टूडेंट्स OH। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। सिंस यू ऑलरेडी नो द मीडियम इज एसिडिक इन नेचर, व्हेन द मीडियम इज एसिडिक इन नेचर व्हाट विल हैपन, यहां पे एक और मोल के HCl की प्रेजेंस में मान लो H पॉजिटिव में इसकी प्रोटोनेशन होगी, फिर से यहां पे प्रोटोनेशन होगी। क्यों होगी प्रोटोनेशन, बिकॉज HCl H प्लस दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, और वो प्रोटॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे अवेलेबल है वो एक्सेप्ट कर लेगा। पता माय डियर स्टूडेंट्स बनेगा क्या, चेक कर लो, यहां पे बनेगा C, ठीक है ऐसे, ये बन गया H, ये बन गया OH, OH तो ऑलरेडी था, और ये H इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बनेगा OH2, चेक कीजिए। लेकिन सिंस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, उस पे चढ़ेगा पॉजिटिव, और इसने एक्सेप्ट की, उस पे चढ़ेगा नेगेटिव, लेकिन उसका ऑलरेडी पॉजिटिव था तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसको आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी कह सकते हो। एंड इट्स अ चार्जेड स्पीशीज, व्हेन इट्स अ चार्जेड स्पीशीज इट इज लेस स्टेबल, व्हेन इट इज चार्जेड it is less stable. And why it is less stable here, because here the highly electronegative oxygen atom develops a positive charge, so what will happen, this bond will break, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचेगा, तो एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एलिमिनेट वाटर हो रहा है, मैं लिखूंगा नीचे -H2O, वाटर बाहर गया, माय डियर स्टूडेंट्स वाटर बाहर गया। जब वाटर बाहर गया तो अब देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। जब वाटर बाहर गया कैसे, जब ये बॉन्ड ही ब्रेक हुआ तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से कंप्लीटली खत्म हो गया, लेकिन इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए खुद ही यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये कार्बोकैटायन नहीं है, देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वी कैन कॉल इट एज अ कार्बोकैटायन, देखिए बन गया कार्बोकैटायन फिलहाल।
तो कार्बोकैटायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, एक रिएक्टिव स्पीशीज है, एंड व्हेन दिस इज अ रिएक्टिव स्पीशीज अगेन इट विल बी जो है वो अनस्टेबल होगी। देखो अब इसके बाद क्या होगा, मैं यहां पे दिखाता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है काम, नेक्स्ट स्टेप में अब इसी कार्बोकैटायन को जिंक फिर से पिक्चर में आ रहा है। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक फिर से मान लो इलेक्ट्रॉन्स देगा, अगर ये बनाएगा Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। देखो यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे काम, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास जा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। बात को समझो प्लीज, यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है माय डियर स्टूडेंट, दो इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं यहां पे अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां से दिखाऊंगा ऐसे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले जो कि जिंक ने छोड़े ऑक्सीडेशन की वजह से, पहले आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, चेक कर लो। जब इसको आप पहले एक इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन यहाँ पे खाली एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इस पे जाएगा तो बताओ कार्बन पे क्या चार्ज चढ़ेगा, बताओ कार्बन पे क्या चढ़ेगा। अब इस कार्बन पे जो कि हाइड्रोजन तो है ही साथ में, अब इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग। यहां पे कार्बोकैटायन जब जिंक से दो इलेक्ट्रॉन लेता है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही मतलब है ना रिडक्शन, तो यहां पे हो रहा है रिडक्शन, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था वो कार्बन नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है अगेन, तो इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट को आप कार्बेनियन क्या होगी, तो यहां पे कार्बेनियन बनेगा आपका। कार्बोकैटायन हो या कार्बेनियन हो, चार्ज जहां पे है डियर स्टूडेंट्स वहां पे अनस्टेबिलिटी, चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस। इसलिए मैं ये पोर्शन रेज करता हूं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, या आपने पढ़ा हो या आपने अब ध्यान में रखा होगा, इसलिए मैं इरेज करूंगा। अब मैंने नीचे वाला पोर्शन इसलिए इरेज नहीं किया बिकॉज मैं आपको इस रिएक्शन का फिर क्विक रिकैपिचुलेशन दूंगा जल्दी जल्दी। अब देखो आपका बन गया ये कार्बेनियन, देखो इसको मैं ऐसे सर्कल में लेता हूं, कार्बेनियन बन गया, लेकिन ये रिएक्टिव स्पीशीज फिर से, तो ये क्या होता है, ये कार्बेनियन मैं यहां पे लिखता हूं CH, मान लो अगर ये फोर्थ स्टेप था, चलो इसको फिफ्थ स्टेप मानूंगा, CH, और जिसकी फ्री वैलेंसी दो थी, देखो वन यहां से एक यहां से, डिपेंड करता है अल्डिहाइड है कीटोन है। अब ये कार्बेनियन क्या कर रहा है काम, ये मीडियम में से फिर से एक H+ को खींचेगा, चेक कर लो, और वो H+ कहां से आता है, वो HCl से आता है। ये चीजें तो आपने ऑलरेडी सीखी है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बताओ क्या बनेगा, देखिए ना खुद ही देखो क्या बनेगा, CH2, ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन। देखिए ये आपका हाइड्रोकार्बन है, यही तो बना रहे थे आप, दिस इज योर हाइड्रोकार्बन माय डियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है, दैट अगर मैं यहां पे देता हूं रिएक्शन, नेट रिएक्शन, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड है, R दोनों अगर R है तो कीटोन होगा, अगर एक R है दूसरा H है तो अल्डिहाइड होगा। यानी कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है और आप रिएक्शन कर रहे हो उसकी जिंक अमलगम के साथ, दैट इज मरकरी एसिड in presence of hydrochloric acid. My dear students, this reaction is Clemenson's reduction, and in Clemenson's reduction जहां पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है आपने देखा मैकेनिज्म से, वो लास्ट में डबल बॉन्ड O की जगह CH2 ग्रुप आ जाता है। दो फ्री वैलेंसी यहाँ पे खत्म होती है, नई फ्री वैलेंसी जो है वो क्रिएट होती है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स वो ये बनेगा, दैट मींस CH2, मैं ऐसे लिखूंगा CH2, और आपका यहां से जो भी ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप होगा वो ऑलरेडी वही पे रहेगा। ये आपका बन गया, देखो क्या बन गया, अल्केन बन गया, ये मान लो अल्केन बन गया, यानी कि हाइड्रोकार्बन बन गया। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड इज अ नेम्ड रिएक्शन which we called as Clemenson's reduction. And in Clemenson's reduction, carbonyl compounds such as aldehydes and ketones, they are reduced in presence of zinc amalgam and hydrochloric acid to the corresponding hydrocarbons, that is alkenes, my dear students. And so far as the mechanism is concerned, in the first step, zinc loses the electrons, undergoes oxidation, and those two electrons are then added upon the carbonyl carbon, with the result this double negatively charged reactive species is created. And in the step number third, in presence of an acidic medium, that means in presence of this acid HCl, each negatively charged center gets H positive, and the corresponding alcohol is formed,
and this corresponding alcohol undergoes further reduction. This corresponding alcohol undergoes further reduction in presence of the acidic medium, because here then the protonation takes place. In protonation, this is protonated alcohol. Again, removal of water takes place, and then carbocation is generated. Then the carbocation again in presence of a zinc accepts 2 electrons to form carbanion, and then this carbanion in presence of an acidic medium again abstracts a proton to form the corresponding hydrocarbon. So this is a very important reaction, my dear students, and this reaction, the named reaction, is known as Clemenson's reduction. And in so far as this named reaction is concerned, many questions are asked in the competitive examinations. So this was the general mechanism and the overview of the first reduction reaction of aldehydes and ketones, that is Clemenson's reduction. It's a very important named reaction. So you just have a look once again on this. We are going to discuss the next important reduction reaction, that is Wolff-Kishner reduction, and then later we are going to give the comparison between the two. So we will discuss the Wolff-Kishner's reduction reaction of aldehydes and ketones in a short while. So my dear students, coming to the reaction number second, that means reduction of aldehydes and ketones, we have reaction number second, and we call this reaction as Wolff-Kishner reduction. My dear students, this is a very important reaction, of course a reduction reaction, and it's for the reduction of aldehydes and ketones. बिल्कुल वही है. क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या करते थे हम काम, अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन होती थी एसिडिक मीडियम में, और वहां पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स मिलते थे, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो चेंज होता था CH2 ग्रुप में. वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी डिट्टो वही होता है, बिल्कुल वही कंपाउंड, स्टार्टिंग अल्डेहाइड कीटोन की लेते हैं हम, और उसमें जो है लास्ट में C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में ही चेंज होता है. कंपाउंड जो है सिमिलर बनते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स. हालांकि देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, the second important reaction of aldehydes and ketones is a Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction, first of all, it is shown by aldehydes and ketones only. You have to remember this point. Whenever you will see Wolff-Kishner reduction, you have to remember that time that we are talking here about aldehydes and ketones. So this reaction, Wolff-Kishner reduction, is given by aldehydes and ketones, number one. Number second, the reagent which is utilized here for the reduction process is hydrazine. My dear students, hydrazine का स्ट्रक्चर होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे, दोनों नाइट्रोजन्स में जो है वैलेंसी जो है वो बराबर है और ऑक्टेट कंप्लीट है, और यू कैन चेक इट आउट दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2. तो हाइड्राजीन बेसिकली जो है यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, मैंने वो लिखा है, वो मैं बाद में आपको बनाऊंगा. और दूसरा रिएजेंट यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है सेकंड स्टेप में, वो है KOH, यानी कि QH के साथ इस रिएक्शन को हीट किया जाता है. यहाँ पे मैं डेल्टा भी सिंबल लिख सकता हूँ, यहाँ पे हीट किया जाता है, और यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है, देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल मैंने यहाँ पे लिखा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH, इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल. माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड हियर एज अ सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट लिया जाता है यहाँ पे, और ऑफ कोर्स सॉल्वेंट जो है वो बॉइलिंग सॉल्वेंट लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो है आप सिस्टम को हीट भी करते हो. और दूसरी बात, KOH से मीडियम जो है वो बेसिक बनता है. देखो डिफरेंस क्या है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन में मीडियम एसिडिक होता था HCl के प्रेजेंस में, यहाँ पे मीडियम बेसिक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास बेस है, और प्रोडक्ट जो बनता है आपका, देखिए प्रोडक्ट आपका हाइड्रोकार्बन ही बनता है. तो मैंने आपको फिलहाल यहाँ पे आपको जो है मेन पॉइंट्स बताए, इस रिएक्शन का आउटलाइन बताया, मैंने ओवरव्यू बताया, दैट दिस रिएक्शन मींस Wolff-Kishner reduction is shown by aldehydes and ketones. Number first, the reagent which is utilized in this reaction is hydrazine. KOH is used as a basic medium, and the solvent which is used is ethylene glycol, and this is this. Now what is the reaction here? You can see, first of all, hydrazine, I have written some important points. Hydrazine, that is NH2 single bond NH2, it acts as a nucleophile, first of all, and you already know that aldehydes and ketones show nucleophilic addition reactions, and we know that nucleophilic addition reaction, and the second class of reaction was nucleophilic addition reaction followed by elimination. My dear students, we have discussed those chemical reactions in detail in the previous lectures. Please, if you have not seen those lectures, please go and visit my YouTube channel and see those lectures. These are very interesting. And number second, the medium is basic, because definitely KOH as a base is present in the Clemenson's reduction. Medium was acidic, and
the solvent which is used here is ethylene glycol. Now, before discussing the mechanism, now see here the reaction. Here is a reaction. अल्डेहाइड्स और कीटोन्स हो सकते हैं हमारे पास, या तो अल्डेहाइड होगा या तो कीटोन होगा। उसमें यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। पहले हमने रिएक्शन कर दिया हाइड्राजीन के साथ। जब उसके साथ रिएक्शन होगी मैं दिखाऊंगा हमें क्या बनता है वहां पे, और उसके बाद आप उसको बेसिक मीडियम में इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हीट करते हो और आपका जो है देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। आई एम गोना शो दिस रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, उसके बाद हम रिएक्शन की मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। बोथ Clemenson's reduction and Wolff-Kishner reduction, they converts aldehydes and ketones to the corresponding hydrocarbons. I am repeating this point, try to understand what I am saying. Both Clemenson's reduction that I have already discussed and Wolff-Kishner reduction that is in front of you, they converts, they change the aldehydes and ketones, means the carbonyl compounds, to the corresponding hydrocarbons. I want to say that means in both aldehydes and ketones where there is a C double bond O group, my dear students, due to this reduction process, this C double bond O group gets changed to CH2 group, means your carbonyl compounds are changed into hydrocarbons, and this takes place in both Clemenson's reduction as well as in Wolff-Kishner reduction. But the basic difference is that in Clemenson's reduction the medium is acidic, that is you take the hydrochloric acid, and in Wolff-Kishner reduction the medium is basic, that I have already told you over here. Both the reactions are similar. In what sense? Because the product formation is similar. There are some differences as well, and that neat touch I am gonna give you inshallah either in the coming lecture, और अगर हमें टाइम मिला तो हम इसी जो है लेक्चर में वो चीजें डिस्कस करेंगे. Now in order to understand the Wolff-Kishner reduction properly, I am gonna go to the mechanism of this reaction. First of all, what I will do, I will erase this. पहले मैं आपको रिएक्शन की आउटलाइन फिर से बताऊंगा, उसके बाद मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. देखिए रिएक्शन का आउटलाइन मैं बताऊंगा. अगर आपके पास अल्डेहाइड एंड कीटोन है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रिएक्शन है क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्शन. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रिएक्शन. बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. देखिए रिएक्शन क्या है, आपका अल्डेहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, दोनों में जो भी होगा कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा. पहली बात, जब इसको आप हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको पता है हाइड्राजीन ये होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मैंने अभी आपको बताया. आप क्या करेंगे, पहले इसमें एलिमिनेट आप वाटर करेंगे. मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहा हूं. देखिए जब आप एलिमिनेट इसमें वाटर करेंगे तो माइनस में यहाँ पे लिखूंगा H2O, तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड. अब ये डबल बॉन्ड अब इस नाइट्रोजन के साथ बनेगा, एंड यहां पे आएगा सिंगल बॉन्ड NH2. चेक इट आउट. इस कंपाउंड को अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, लेक्चर नंबर 11, इस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्राजोन. माय डियर स्टूडेंट्स, वी कॉल दिस कंपाउंड एज हाइड्राजोन. अब देखो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में. अब यही हाइड्राजोन जो है, बिकॉज अभी रिएजेंट दूसरा भी है, ये तो पहला रिएजेंट है हाइड्रोसिन, दिस कॉल्ड एज हाइड्रोसिन. ये आपका हाइड्राजीन है, ये आपका अल्डेहाइड या कीटोन, दोनों में से कुछ भी है, उसको हाइड्राजोन कहते हो आप. अब ये हाइड्राजोन जो बना N सिंगल बॉन्ड NH2, अब इसको आप मीडियम एक्वस में यानी कि KOH में आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, एंड ऑफ कोर्स आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो मैं सीधे लिखूंगा इथाइलिन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करते हो. वाटर तो होगा ही, एक्वस मीडियम तो है ही ये, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हम लेते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है आपको काम, सीधे ये ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन भी बाहर निकलता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको मैकेनिज्म में. आपका सिंपली ये बनेगा C और यहाँ पे H2 बनेगा. ये देखो आपका हाइड्रोकार्बन, ये मैं दिखाऊंगा कैसे बनता है, और आप देखोगे वहां पे नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलता है. तो द मेन थिंग इज दैट आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. देखो यहाँ पे अल्डेहाइड और कीटोन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में, जिसमें पहला रिएजेंट हाइड्राजीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता है और दूसरा बेसिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एज सॉल्वेंट. जब इसको आप बॉइल करते हो यानी कि हीट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका हाइड्रोकार्बन बन जाता है. और ये ग्रुप देखो आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, आपका CH2 ग्रुप. Now, what is the mechanism of this reaction? How does this reaction actually takes place? Now, let us discuss the mechanism over here. And this is a very, very important thing that I'm going to discuss over here. And my dear students, please, mechanism books में usually नहीं दिया होता है,
तो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान रखें। आप कहीं भी चाहिए, यूजुअली आपको हर एक रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। देखिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं मैकेनिज्म। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, पहले क्या होता है, पहले आपको पता है ये कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, और इधर इट कैन बी अल्डेहाइड और इट कैन बी कीटोन। अगर दोनों ग्रुप यहाँ पे R है तो कीटोन है, अगर एक R है दूसरा H है तो अल्डेहाइड है। अभी अल्डेहाइड है कीटोन है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो पहले क्या होता है, आपको पता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में आप क्या कर रहे हो काम, आप रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन के साथ, और आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है, और दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर होती है। आपको पता है दैट ये हाइड्रोजन क्या करता है एक्ट, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, बिकॉज इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। और आपको पता है कार्बन पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है ये डोनेट करता है यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, ये शिफ्ट तो ऑलरेडी पढ़ा है आपने, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है। दिस इज रिएक्शन जो है स्टेप फर्स्ट। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये C और ये कार्बन की ये दो फ्री वैलेंसी है 1 और 2, ये मैंने ऊपर दिखाई। नीचे से अब इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, चेक कीजिए N, देखिए N, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ मैं, चलो मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ। ये मान लो N, इस N के साथ अपने दो हाइड्रोजन है, चलो मैं यहाँ से एक दिखाता हूँ, यहाँ से एक दिखाता हूँ, अच्छे से सीखना। और उस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ अपना बॉन्ड है, दैट इज NH2। चलो इस नाइट्रोजन का तो हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है फिलहाल। अब देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने जो ही लोन पेयर डोनेट की, तो ये डोनर एटम बन गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। चेक कीजिए इस चीज को, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। अब देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इट्स अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज ये भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से है। और इस यहाँ पे क्या है, चलो मैं ये NH2 यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी मुझे। ये मैं लिखता हूँ NH2, ये वाला NH2, ये वाला NH2 मैंने नीचे लिखा, और ये हाइड्रोजन दो जो है इस नाइट्रोजन के साथ, वो मैं यहां से दिखाऊंगा आपको ऐसे। आई होप इट्स क्लियर। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, बिकॉज ये डोनर एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, इसलिए इस पे पॉजिटिव आ गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो चार्ज मेक्स द सिस्टम, इस चीज को तो आप समझ लीजिए हर बार। यहाँ पे चार्ज सिस्टम में होता है ना, उससे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये नाइट्रोजन भी चाहेगा अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना, और ये ऑक्सीजन भी चाहेगा अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड इस पे एज शिफ्ट लोन पेयर होगी। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा एज H+, और उसको ये नेगेटिव ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई रोट। देखो यहाँ पे बनेगा क्या, देखो कार्बन, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूं कार्बन, ऐसे चेक कीजिए, ये कार्बन है, चलो ये दो फ्री वैलेंसीज है जो पहले थी, जो कार्बोनिल कंपाउंड था। अब देखिए यहाँ पे चलो मैं ऑक्सीजन को ऐसे लेता हूं, उस ऑक्सीजन ने यहां से H खींचा, तो ये बन जाएगा OH। चेक कीजिए उस OH में से, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान ये रहा बॉन्ड, उस नाइट्रोजन ने एक H तो छोड़ा, उसके बाद बचा एक H, देखो उसको मैं लिखूंगा ऐसे NH, और उस नाइट्रोजन के साथ NH2 है, वो मैं ऐसे लिखूंगा NH2। आई होप इट्स क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पे देखिए, चलो यहां तक तो लिख दिया आपने, चलो मैं नीचे वाला इरेज करूंगा यहां पे। देखिए अब जब ये बना यहां पे, जो मैंने इस प्रोसेस से आपको दिखाया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में अब मीडियम जो है वो बेसिक है, आपको पता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। KOH आपको पता है, दिस इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मींस OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है दैट नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेफिनेटली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके साथ एक और नाइट्रोजन जुड़ा है, और वहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये OH नेगेटिव जो मैंने यहां से आपको दिखाया, मैं यहां से भी दिखा सकता हूं, दिस OH नेगेटिव, चलो मैं यहां से दिखाता हूं ये OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव क्या करता है काम,
ये इस नाइट्रोजन में से ये हाइड्रोजन जो है ये खींचता है। देखिए यहां पे जब इस हाइड्रोजन को खींचेगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है सारा का सारा जो है नाइट्रोजन पे चढ़ता है। ऐसे चेक कीजिए, उसकी वजह से देखो क्या स्ट्रक्चर बनता है। देखिए सी, ये कार्बन, ऊपर ये वैलेंसी है। चेक कीजिए यहाँ पे OH और यहाँ पे नाइट्रोजन। चेक कीजिए अब नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2। चेक कीजिए अब देखो, अब नाइट्रोजन पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा बिकॉज चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात जो आपको मुझे यहाँ पे बतानी है वो ये है दैट ये नाइट्रोजन की जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ऐसे। उस हिसाब से ये ग्रुप बाहर जाना चाहिए। देखो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब ये ग्रुप बाहर जाएगा ये निकलेगा एज OH नेगेटिव, मगर याद रखिए आप OH नेगेटिव जो है इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। इस बात को आप समझ ही लो। तो हो क्या रहा है, इसका मतलब है इसके बाहर निकलने से पहले, इसके बाहर निकलने से पहले वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में इसकी प्रोटोनेशन होती है। यानी कि कैसे होती है प्रोटोनेशन, चेक कीजिए। आपको पता है वाटर जो होता है वो ऐसे होता है H2O, बिकॉज वाटर तो मीडियम में होगा, वाटर की परसेंटेज कुछ ना कुछ तो होगी। बेसिकली ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होती है ना, पहले उसकी प्रोटोनेशन होगी, यानी कि वो यहां से खींचेगा H+। आप इस बॉन्ड को वापस ले लो, वो OH नेगेटिव फिर से वापस क्रिएट होगी, यहां पे उसकी वजह से पॉजिटिव चलेगा। चेक कीजिए, यानी कि मैं पहले वही स्टेप आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं ये बाद में दिखाऊंगा। यानी कि पहले यहां पे प्रोटोनेशन होती है। देखो प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, देखिए प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, प्रोटोनेट, ये नेगेटिव उधर ही रखते हैं। देखो यहाँ पे प्रोटोनेट करते हैं, जब प्रोटोनेट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज NH2। इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूं, आराम से सीख लो। अब देखो OH के बजाय एक H+ यहां से ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट की तो इसमें पॉजिटिव चढ़ेगा, OH2 बनेगा। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ये बॉन्ड वहां पे जाएगा और ये बॉन्ड बाहर निकलेगा, यानी कि अब यहां पे -H2O बाहर निकलेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, OH नेगेटिव इज अ बैड लिविंग ग्रुप बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है 1 करोड़ की बात मैंने आपसे कही है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप समझ लो। अब देखो जब ये यहां पे आ गया, वाटर तो गुड लिविंग ग्रुप है तो बाहर चला गया, जरा बता मुझे क्या बना, देखो C, 2 फ्री वैलेंसी। अब इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे इसका NH2 अपना है। चेक कीजिए, और वो तो चला गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब वाटर ही बाहर गया तो क्या मैं अब ये ऐसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड N। देखिए C अब डबल बॉन्ड N और उस N के साथ NH2 है, उस N के साथ NH2 और यहाँ कार्बन के साथ 2 फ्री वैलेंसी। क्या ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनाता हाइड्रोजन बीच में? देखिए ये हाइड्रोजन बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं आपको। अब जब हाइड्रोजन बना, अब देखो इस हाइड्रोजन का क्या बना। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से मीडियम जो है KOH की प्रेजेंस में, बिकॉज दैट इज एसिडिक बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में अब OH नेगेटिव, चलो मैं एक H ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, अब OH नेगेटिव इस H को खींचता है यहाँ पे, बिकॉज ऐसी बात है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो ये OH नेगेटिव बिकॉज मीडियम इज बेसिक तो इसको एब्स्ट्रैक्ट एज अ प्रोटॉन करेगा। जब एब्स्ट्रैक्ट इसको प्रोटॉन करेगा, पानी तो बनना ही है ना। देखो जिगर यहाँ पे भी OH नेगेटिव ने इसको H+ खींचा था, बिकॉज ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है एंड दिस इज योर डेल्टा पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है वहां पे भी वाटर बना था और वही वाटर मैंने फिर यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो इस बात को समझिए। अब जब यहाँ से वाटर फिर से बाहर जाएगा, दिखाइए आप वाटर निकला बाहर या मत दिखाए, कोई टेंशन नहीं है। अब उसकी वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पे चढ़ेंगे ऐसे। देखिए क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कार्बन की ये 2 फ्री वैलेंसी, देखो सब बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे NH और यहाँ पे नेगेटिव, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। देखो अब इस नेगेटिव की वजह से क्या है, इस नेगेटिव की वजह से देखो क्या होता है काम, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है, ये बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे आता है और ये पाई बॉन्ड कार्बन पे चला जाता है। बिकॉज देखो अगर आपके पास 2 सेंटर्स है, मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या यहां पे अगली, चलो मैं पहले ये बनाता हूं उसके बाद बताता हूं। ये हो गया कार्बन, ये हो गई ये फ्री वैलेंसी, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड चेंज हुआ टू सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया NH। देखो यहां तक तो सबको समझ आ गया, NH
पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड कार्बन पे चला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है, चेक कीजिए। इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे था, इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था। सर आपने ऐसा क्यों चेंज किया? सुनो मैंने क्यों चेंज किया, बिकॉज एक पे आपका नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे आपका कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको प्रोटोनेशन करना है, वो भी वाटर की प्रेजेंस में। आपको पता है वाटर जो है वो वीक एसिड है, बिकॉज वाटर तो सिस्टम में बना। अब H प्लस जो है वो इजीली वो कहां पे जा सकता है, जहां पे आपको नेगेटिव चार्ज इजीली अवेलेबल होगा, कि वो डिफिकल्टी से अवेलेबल होगा, इजीली अवेलेबल होगा। आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा जो है छोड़ेगा नहीं। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ज्यादा डिस्पर्स है। इसका मतलब है प्रोटोनेशन अगर दो पे होगी, एक मतलब अगर एक ही पे करनी है आपको, तो प्रोटोनेशन ज्यादा इजीली यहां पे हो जाएगी एज कंपेयर टू यहाँ पे, बिकॉज यहां पे नाइट्रोजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने से ये नेगेटिव चार्ज को इजीली छोड़ेगा नहीं, यहां पे इजीली छोड़ेगा, इसीलिए यहां पे शिफ्ट हुआ, इसलिए यहां पे रेजोनेंस हो गई। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पे। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो देखो क्या होगा, अब वाटर की प्रेजेंस में फिर से देखो, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, ये मान लो HOH, वाटर तो है मीडियम में, ये पता है आपको, डेल्टा पॉजिटिव है, ये 2s डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, और यहाँ पे कार्बन अब इस प्रोटॉन को खींच रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन पे फिर से बॉन्ड अपना आ रहा है, फिर से OH नेगेटिव निकलेगा। यानी कि मीडियम तो बेसिक है ही आपका वाटर एंड OH नेगेटिव, ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब देखो इसकी वजह से क्या बनेगा, उसकी वजह से ये कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज था, अब उसने हाइड्रोजन ले लिया तो बन गया CH, और CH के बाद देखो क्या है डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड N और फिर डबल बॉन्ड है NH। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? फिलहाल देखो इसके बाद की कहानी क्या है। इसको अल्टीमीन भी कहते हैं, जहां पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे। वहां पे पहले था C कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान। इस स्ट्रक्चर्स को अल्टीमीन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, इनको अल्टीमीन भी कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को अल्टीमीन भी कहते हैं। लेकिन अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना। देखो अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, तो मैं डियर स्टूडेंट्स ये पोर्शन रिलीज करूंगा। आई होप आपने ये पोर्शन लिखा होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो अल्टीमीन आपका बना, मैं यहां पे दिखाता हूं, CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। देखिए अब आपको पता है, यहां से फिर से NH में ऐसे भी लिख सकता हूं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव। ये चीजें आपको पता है, ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया। अब मीडियम तो बेसिक है ना, ये तो पता है आपको, यानी कि OH नेगेटिव है। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये फिर से इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस, एंड ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर तो बाहर जाएगा, वाटर H2O तो बाहर चला गया। अब देखो बना क्या, यहाँ पे बना CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और उस N पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब देखो क्या होगा, आप कहोगे सर प्रोटोनेशन करो, फिर से आप फिर से प्रोटोनेशन करोगे, वो तो फिर से यहाँ पे आ गया, वो तो फिर फायदा ही नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये स्टेप रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इन द सेंस लाइक दिस, अगर आप वापस इसको पानी डालोगे ना, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। आपको पानी निकला, इसको बाहर कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे स्टेप ये होगा, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगी, और ये कार्बन का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूं। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद हम ये कहेंगे। देखो CH, अगर कार्बन पे ही ये बॉन्ड आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना। देखो प्लस N2 गैस फॉर्म में होता है, ये बाहर जाएगा। आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर ऐसा शिफ्ट ही क्यों होगा, बिकॉज आप यहां पे नेगेटिव चार्ज ला रहे हो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान तो पाई बॉन्ड बन रहे हो, लेकिन आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो यहां पे। क्या ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है? थर्मोडायनेमिकली शायद आपको ये फेवरेबल ना दिखे, बट आप देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है ना, उससे सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इफ इट इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक ड्रिवन फैक्टर, बट माय डियर स्टूडेंट, इट इज एन एंट्रोपी ड्रिवन फैक्टर, एंड फॉर द होल प्रोसेस अगर हम देखेंगे, डेल्टा G फॉर द सिस्टम विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। When डेल्टा G will be negative, the process will be spontaneous, so it will be definitely on. So it is because of the increase in the entropy of the system due to the formation of the nitrogen that this shift takes place here. Pi bond breaks and the sigma bond is broken. Now after that what happens? अब ये हमारे पास ये, अब ये क्या करेगा, हमारा काम तो हो गया। अब ये CH नेगेटिव जो है, इसको प्रोटॉन चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे CH2 चाहिए।
अब याद करो, हमने रिएक्शन की थी C डबल बॉन्ड O ग्रुप गेट्स चेंज टू CH2। अब यहाँ पे मीडियम में से फिर से वाटर तो बना हुआ था ना, देखो यहाँ पे भी वाटर है, तो वो फिर से आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव है तो S डेल्टा नेगेटिव है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये चीजें आपने सीखी है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाटर में से प्रोटॉन खींचेगा। जब प्रोटॉन खींचेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो आपका क्या बना, चलो मैं इरेज करता हूं यहाँ पे, तो वहां पे बन गया आपका ये CH2। CH ऑलरेडी था, इस नेगेटिव ने H खींचा तो आपका CH2 बन गया, यानी कि आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। यही तो रिएक्शन थी, यही तो माय डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन थी। हाइड्रोकार्बन आपका बन गया, और हाइड्रोकार्बन में और उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, यानी कि प्लस OH नेगेटिव आपका फिर से निकलेगा। ये तो बता ही रहा है आपको कि मीडियम जो है वो बेसिक है। आपने तो रिएक्शन ऑलरेडी की थी बेसिक मीडियम में, ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। सो वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस, whether the reduction reaction takes place